May I come in, sir? Come in, Shivani. Good morning, sir. Good morning, sir. Please sit down. Better. Thank you, sir. Shivani, nice. You prefer watching movies? Yes, sir. What is your aim? Do you for only for entertainment, or do you get any social message from that? Sir, it is for entertainment as well as for social information also. Yes, sir. But some recent movies you have watched, Yes, and sir. do you find any good message from that, or it was total बकवास जिसे हम कहते हैं? Please. So recently I have watched Sir movie, which is from South, and the actor is Dhanush. And sir, I got the message of caste discrimination, which is prevalent in the society, and how should we tackle it, and how after tackling it, what would be the benefits to the society as well. You see, in Bihar there is a lot of talk about Jivika. I must have heard of it. Yes. What is it, Acha? Let me see first. What is it, Jivika, and what happens there? Sir, Jivika is the program implemented by Bihar government, and in which self-help groups of the women are organized, and they are empowered to establish MSMEs as well as other activities for the empowerment of women and awareness. But my feeling is that they are not doing any productive work. It is just a pastime. Many women saas bahu pato, they all sit there and do criticize each other. Gap kiya din bhar, and then they go home. Is there any productive work coming out of it? Do you have any fact figures, data to show that they are productive? Let me have that. Sir, as I have heard earlier in the news also, कि there is the establishment of Didi Ki Rasoi, and also they have engaged in MSME sector also. And also they are also engaged in the renewable sector for the manufacturing of renewable sector and renewable energy related things. So they are very much empowered, and we can see approximately 1.3 crore women are engaged in it. And they are somewhere domestic violence is also stopped and decreased somewhere. So we can see that it is not failure. We have succeeded in this somewhere. Okay, now you see, you are a student of economics. Yes. There are a lot of things are being said of India's growing economy, growth, good growth, but I'm a veteran critic. I feel this is totally nonsense. We are in a very bad shape. Our inflation is increasing. We have a lot of unemployment. Rural economy is being sustained by the free food grains. So, don't you think that India's economy is going to falter? We are going to be in a very bad shape like Pakistan and Lanka. What is your view on this? Sir, when we compare from the other countries, we have seen that their situation are more worse than ours. And sir, when we talk about the economy of India, it is sustaining somewhere. And our fiscal deficit is also not that big, and that is manageable and also handy. And sir, if we talk about the aggregate demand, it is continuously increasing, which is shaping the economy of India. Also, India is a good resource and good, we can say, place for the investment, foreign directed investment also. And people are influencing to invest in India because of higher opportunities, which is prevalent in India also. So, in my opinion, India have great future ahead, and we will achieve our target of being 5 trillion economy by 2047. Now, can you give me a relative comparison with China and India? Will we be able to catch up China, or even say reach, say, 25-30% of China's growth? What's your view? Let me have some fact figures. Sir, as we see, China is a communist country. A single party rule is there. So, when we talk about that is in India, India is democratic country, and several. Sir, may I speak in English too? Whatever Okay, you thank you, like, sir. it's you. सर, जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, और सर जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती हैं तो उसके दौरान बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, कभी लोगों के प्रोटेस्ट और कभी कुछ. तो सर इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, और लोगों के हर्डल्स भी बीच में आते हैं, पर साथ ही साथ उसको टैकल भी किया जाता है और लोगों की बातें भी सुनी जाती है. पर चाइना में कहीं ना कहीं प्रेस का फ्रीडम नहीं है और लोगों का इंडिविजुअल राइट्स का भी फ्रीडम नहीं है. तो इस कंपैरिजन में इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर देन चाइना, बिकॉज यहाँ पे लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी नोटिस किया जाता है, उनके फ्रीडम और राइट्स को भी I think Shivani will stop at that. Time is there, so he will. Shivani, when you did your graduation?
Sir, it was in 2020. 2020 Yes, sir. क्या कर रही हो उसके बाद से? Sir, I was underemployed. I was teaching actually students. टीचिंग Yes, sir. Field में? Home tuitions. I gave home tuitions. क्लास which Sir, class you teach? sir, till class 10th. Class 10. Yes, sir. And subject? Sir, especially SST and science. SST and science. Why are you best candidate for this job? Sir, as a civil servant, there is a need of adaptability. क्योंकि उनकी पोस्टिंग जगह जगह होती है और अडेप्टेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे आई थिंक आई डू हैव दिस एबिलिटी इन मी और सर फिर एथिकल वैल्यूज़ दैट आई हैव इनसाइड मी एथिकल वैल्यूज़ साथ में सर आई एम वेरी मच टाइम बाउंड and I do my work in very much time bound and efficient manner. So I do have all these capacities which a civil servant needs for their job. One nation, one election. इसके बारे में मुझे आपका व्यू से अधिक यह जानना है कि इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे? Sorry, sir. May you repeat it? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मुझे आपका ओपिनियन नहीं जानना है। Okay, sir. इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में जानना। सर जैसा हम देखते हैं कि जब भी कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं तो मेरे हिसाब से ये फेज़ वाइज मैनर में होना चाहिए जिसे हम 3 फेजेस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी स्टेट्स जहाँ पे 1 साल के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं उनका इलेक्शन साथ कराया जाना चाहिए। फिर दूसरे फेज़ में सर हमें स्टेट्स का और साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रूरल अर्बन एरियाज़ का साथ में इलेक्शन कराना चाहिए ताकि स्टेट की डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और बीच में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो। और सर थर्ड स्टेज में मेरे हिसाब से नेशन वाइज और स्टेट एज वेल एज रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ में इलेक्शन साथ में होने चाहिए ताकि वन नेशन एंड वन इलेक्शन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके फेज वाइज मैनर में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चीन के साथ जो हमारा ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन के आसपास है। तो आपको लगता है कि चीन के साथ भारत स्वयं या चीन किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क लेने की स्थिति में है? दोनों ही पक्ष। सर चाइना अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है लाइक इट इज़ बूमिंग इट्स इकोनॉमी और वहाँ का सर मार्केट भी बहुत ज़्यादा लार्ज है और इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट जो इकोनॉमी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो बिजनेस है चीन के साथ यस सर। वो ट्रेड वो 100 बिलियन के आसपास है। तो वैसी स्थिति में जो कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं इंडिया और चीन के बीच में, क्या दोनों पक्ष कॉन्फ्लिक्ट लेने की स्थिति में है? नो सर, अकॉर्डिंग टू मी अभी ना लेने के मूड में है और ना लेना चाहिए क्योंकि चाइना अभी बहुत ज़्यादा बिग इकोनॉमी है और इंडिया भी ग्रोइंग स्टेज में है। तो सर वॉर हमेशा इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं इकोनॉमिक सोशल एज वेल एज डिफरेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो सर अभी दोनों वॉर में इंगेज ना हो तो वही अच्छा सर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मी। और कुछ? सॉरी सर। अच्छा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड कैसा है? सर आर ट्रेड इज इंक्रीजिंग इन एशियन नेशंस और सर एग्रीमेंट भी हुआ था इसके लिए फ्री ट्रेड के लिए और सर रिसेंटली अभी बहुत सारे आई एम सॉरी सर आई एम अनएबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। अच्छा, ये बताइए कि श्रीलंका के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन? सर इनिशियल फेज में इट वाज गुड फिर बाद में जब तमिल और सिंहलीज का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे रिलेशंस में भी। पर उसके बाद से जब चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी की वजह से जब श्रीलंका में डेट क्राइसिस आया
तो उसके बाद हमने देखा कि चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और साथ में फंडिंग भी भेजी जा रही है। तो अभी जो रिलेशन है वो अच्छे लेवल पे है। ठीक है। शिवानी, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी है ना? यस ठीक है। जब हम लोग नेशनल इनकम हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, Yes. ठीक है, तो किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? एनएनपी और जीडीपी? सर ये- NNP-FC श्याम कौन जी सा? की स्टूडेंट है NNP-FC इसलिए इसका FC, what is FC? सर फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। यस पहले जब while we are calculating the national income, इनका भी then taxes and the depreciation, क्या हम इसको काउंट करते हैं? सर depreciation are subtracted and taxes are included in it. Sure. Yes, as per my All taxes are included. no sir. Indirect taxes are included in it, and direct taxes is subtracted. Yes. Subtracted. Yes, sir. Okay. Can you define poverty? Poverty. Sir, poverty is a situation or condition where a person is not availing basic necessities of life also. Yes, sir. मैं समझता हूँ कि जैसे मणिपुर में सिर्फ 2 लोकसभा सीट है। ओके, अभी हाल में G20 हुआ है, तो जैसा मैं फील किया हूँ कि G20 के लिए 2 महीने 3 महीने समय दिया गया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि अच्छे से हो सके। Yes, sir. और हमारे देश में ही मणिपुर का मुद्दा था जो इतनी दिनों तक चलता रहा, लेकिन कोई उसको नहीं देखा गया। तो क्या ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 लोकसभा सीट था इसलिए केंद्र सरकार वहां पे फोकस नहीं की, लेकिन पूरे इंडिया को दिखाने के लिए G20 पे इतने सारे पैसे खर्च किए गए? तो आपका क्या ओपिनियन है? सर मणिपुर वायलेंस जो मुद्दा था वो बहुत हीनियस क्राइम है और ऐसी क्राइम होनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस है। पर सर G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास फर्स्ट टाइम आई थी और इस समय इंडिया के पास ये मौका था कि वो अपने पावर को और सर अपने इन्फ्लुएंस को दिखा सके और ग्लोबल साउथ का लीडर एज अ लीडर वो आगे उभर कर आ सके। तो इस केस में सर बहुत सारे देश के डिप्लोमेट्स भी आने वाले थे, तो इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी ध्यान रखी जाए। तो सर इस हिसाब से सर इन्वेस्टमेंट और वी कैन से एक्सपेंडिचर करना G20 के लिए इट वाज गुड। और सर बाकी मणिपुर क्राइम इट वाज हीनियस और इस पे आगे देखा जाएगा कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है। बिहार में कास्ट सेंसस आया है, आप अपने कास्ट का देखें। यस सर, EBC। इट मींस यू आर कास्ट इन? No, sir. Sir, it was community, not as per individual, but it was seen as community census. Or it was, sorry to correct, but it was not census but survey. Okay. Yes, sir. इट इज सर्वे और सेंसस? It was survey, sir. सर्वे। Sir. क्या ये होना जरूरी था? Sir, anything has bad and good in it. सर कास्ट सर्वे बिहार में होना ज़रूरी था कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार में अभी भी कास्ट जो है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ट्रैप है पूरी सोसाइटी। और साथ में कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रही है क्योंकि वी आर नॉट मच एजुकेटेड द बिहार पॉपुलेशन एंड नॉट अवेयर ऑल्सो। और सर हम देखते हैं कि कास्ट के अंडर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउन प्रोडन हैं अभी भी। तो सर कास्ट सेंसस होना ज़रूरी था, पर बस कास्ट ही बेसिस नहीं होना चाहिए, हमें इकोनॉमिक लेवल पर भी लोगों को बूस्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। आपको अपने कास्ट का मेजोरिटी देख के क्या रिएक्शन हुआ? सर अकॉर्डिंग टू मी EBC जो थी और प्लस OBC दैट वाज 63% अप्रॉक्सीमेटली। और सर इसमें ये देखा गया कि इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस हिसाब से। जैसे 63% पॉपुलेशन है बट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई लीडर नहीं है। तो सर ये बुरा लगा देखकर कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हम लोगों का। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके कास्ट के कैंडिडेट आएंगे आप उनको वोट करेंगे? नो सर, ऐसा नहीं है। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं लीडर की, अगर उन प्रोपेगेंडा देखना होता है उनका एजेंडा कि वो किस चीज़ पे वर्क करने जा रहे हैं। और अभी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन पे फोकस करना, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सर कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलनी चाहिए और कास्ट कभी इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। अभी हाल में ही वुमेन बिल आया है, सॉरी वुमेन बिल पे बात की जा रही है, क्या है ये?
सर विमेन रिजर्वेशन बिल ये फर्स्ट टाइम 1996 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था एज पर माय नॉलेज। और सर इसके अकॉर्डिंग विमेन को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है इलेक्टेड पोस्ट के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा में होंगे। तो सर यही है विमेन एक रिजर्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट सरकार के द्वारा दिया गया है इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। क्या मेरी बातों से सहमत हैं आप? सर अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए और रिजर्वेशन की बात की जाए तो सर इसका बस गलत यूज़ ही नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छे कदम भी उठाए गए हैं। जैसे आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम बट एक पंचायत है वहाँ पे एक विमेन सांसद है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही हैं। साथ में विमेन पार्टिसिपेशन भी देख रहे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रही है। आई एम आस्किंग, आई वांट टू आस्क, इसका मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर मिसयूज जैसे पंचायत पति मतलब ऐसा देखा गया है कि इंस्टेंसेस देखे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा सर अवेयरनेस की कमी से और विमेन एम्पावरमेंट अभी भी प्रोग्रेस में है, इस वजह व्हाट से। यू वांट टू कंक्लूड, यस और नो? सर इट इज नॉट कंप्लीट यस एंड नाइदर इट इज नो। ओके, यस यस और नो बोथ? यस सर समवेयर इन बिटवीन। ओके सर। ठीक है शिवानी, आपका इंटरव्यू ओवर है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक्स।